Assalamu alaikum students. Welcome all of you to this important lecture of BS Nursing second semester expository writing. First of all, best of luck all of you for your upcoming exam and hope you are preparing seriously because this subject is very scoring. If you understand the concept properly, आप इस subject में maximum number gain कर सकते हैं. Basis on the previous students के अगर आप result देखें तो they have scored 90% इस subject के accordingly. And this video is extremely important and this is the last minute video which I am making because most of the students they have requested. उन्होंने message किया है कि सर एक final video भी बना दें क्योंकि they have their exam very near. And I will try to first part of the lecture I will give you the complete overview of your expository writing syllabus according to the university exam pattern. And please do not skip any part of this lecture because at the end of this video I will guide you about how these topics appear in exam, which areas students usually ignore, and how you can prepare during the exam as well. And I will also shortlist the most important question you must go through before appearing in the exam. And after that I will give you sample essays topics as well which you must prepare for your exam. Okay, so make sure you stay connected and do not miss the video as well. And today our purpose is very simple: understand the course topics, understand what examiner expect, and understand how to write answer properly as well. So quickly, this is the course content. You know, in the second semester you have total 6 chapters, and these are the chapters in front of you. That is chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4 and 5 and 6. So here most important is students chapter number 1, 2, 3 में से you have 5 MCQs in each and you have total number of जो आपके short essay questions होंगे वो एक एक होंगे. लेकिन जो आपके चैप्टर नंबर 3 के बाद जो 4, 5, 6 उसमें से आपके 2 SCQs आने और 10 MCQs आने हैं. तो इट मीन्स कि आपने जो लास्ट अपने 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे SCQs भी और MCQs भी इसी में से आएंगे. लेकिन जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें से सिंपल आपके 5 MCQs आ रहे हैं और एक SCQs आ रहे हैं. सो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो चैप्टर नंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मेन फोकस शुड बी ऑन चैप्टर नंबर 4, 5 and 6 because you will have maximum 30 you will have 30 MCQs and you have 6 SCQs. Okay, from these 3 chapters. So paper point of view के हवाले से ये बहुत ज़्यादा important है. As I told you in this video I will also give you those questions which are very important. So without wasting much time let's look at those questions which I have prepared for you, expository writing final term important questions. So first we will start with the chapter number 1. So possible exam questions. Here you can see these are the content for chapter number 1, but for exam point of view the short SCQ or the important question which I have shortlisted for you all is characteristics of effective expository writing, and you have to describe clarity, coherence and organization. ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन देखनी है आपने. इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग की डेफिनेशन क्या है उसकी, प्लस उसके साथ कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन को आपने देखना है. चैप्टर नंबर 1 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में से जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए आपके लिए, दीज आर प्री राइटिंग टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आपने ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग, माइंड मैपिंग हो गया, लिस्टिंग, क्वेश्चनिंग एंड आउटलाइनिंग को करना है. इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ अबाउट PR रिव्यू एंड फीडबैक, providing and receiving critic as well. That is most important question, and make my words, you will have this question in your exam. Okay, that is regarding chapter number 2. And moving on the next one, we have chapter number 3. And first important question, you must know the definition of hook and thesis statement and conclusion. This is a part of essay, you can say conclusion. Thesis statement उसकी definition क्या है और थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस में क्या डिफरेंस है उसको आपने देखना है. एंड कोहेजन एंड कोहेरेंस के बारे में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन योर MCQs in plus in your SCQs as well. Okay, and chapter number 4 and 5.
स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में यू विल हैव एन एसे। आपके पास जो टॉपिक आएगा वो कोई एसे का होगा या आपके पास कोई टॉपिक होगा जिसको आपने पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आपने एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसमें से यू हैव टू नो द टाइप्स ऑफ एसेस कौन कौन सी हैं, जैसे नैरेटिव हो गया, आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, काज एंड इफेक्ट हो गया, उसको आपने गो थ्रू करना है एसेस की टाइप्स को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें वो काज एंड इफेक्ट ऐसे यू कैन हैव इन योर एग्जाम एंड डिफरेंट टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस। ये क्वेश्चन माइट भी ऐसी क्यूज में आपके आ सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 एंड 5 जो हमने पास पेपर को कंक्लूड किया है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन दे हैव गिवन यू ऐसे फॉर्म में या पैराग्राफ के फॉर्म में उन्होंने आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए हैं। उसकी डिटेल में आपको लास्ट जो इसका आपका स्लाइड्स आएंगी उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन इफ़ यू टॉक अबाउट दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 5, chapter number 6, sorry, it is mistake over there, consider this one, chapter number 6, avoiding plagiarism, ethical consideration and best practice, and proper citation and referencing APA, MLA and other citations है। So you will have question from this part of your चैप्टर। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस होंगे SCQs और 10 MCQs होंगे। सो फोकस ऑन चैप्टर नंबर 4, 5 and 6 and also give importance to chapter number 1, 2 and 3. So mostly student they have problem regarding कि पैराग्राफ को किस तरह से करना है और एसे को किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स हियर आर द एक्सपेक्टेड एसेज एंड पैराग्राफ इन योर एग्जाम। देखिए एसे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपने स्टार्ट करना होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ होता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है कंक्लूजन होता है। ऐसे में जो वर्ड्स लिमिट होगी वो ज़्यादा होगी। एग्जामिनर कैन आस्क यू टू राइट डाउन मोर देन 300 to 400 वर्ड्स, लेकिन जो पैराग्राफ की आपकी लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, मैक्सिमम 150 to 200 वर्ड्स के दरमियान में आपने लिखना होगा। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, आई रीड इट फॉर यू ऑल। एंड योर यूनिवर्सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज एन इवेंट, seminar, cultural day, or a sports week. Write a paragraph 250 to 300 words in detail describing the whole event, including your personal experiences. Student, one thing which is very important, write a paragraph. So they haven't given you the statement over there about write पैराग्राफ्स की बात नहीं कर रहे, वो सिंपल एक पैराग्राफ की बात करें। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि 250 to 300 वर्ड्स के अंदर आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट मोर देन 2-3 पैराग्राफ्स लिखाता है तो एग्जामिनर उसको मार्क्स नहीं देगा। सो मेक श्योर इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। एंड सेकेंडली फर्स्ट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट के पैराग्राफ है या पैराग्राफ्स, उसके बाद आपने उस इवेंट के बारे में लिखना है जिसके पास आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, ओके। और ऐसे और पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है, जो आउटलाइन है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यू विल हैव एन आइडिया, ओके। इसके अंदर आपने डिटेल में नहीं लिखना, यू हैव टू राइट डाउन सिंपल एक पेपर के अंदर एक पेज के जितना डाटा एनफ है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 2 है राइट अ पैराग्राफ अगेन 250 to 300 वर्ड्स about excessive use of social media by youth. A paragraph must include the cause and effect element. So similarly here in this again the examiner wants you a single paragraph based on 250 to 300 words. Again it must also have both cause and effect in a single paragraph. अगर आप cause and effect के अलग अलग पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं so वो पैराग्राफ की डेफिनेशन के अंदर स्टैंड नहीं करेगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन एक्सपेक्टेड ऐसे एंड पैराग्राफ में देखिएगा, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड डिस्क्राइब हाउ यू वुड स्पीक और राइट टू पब्लिक ऑडियंस अबाउट इट, अ चेंज दैट इम्प्रूव योर लाइफ एंड टेकिंग अ ईयर ऑफ बिफोर कॉलेज। सो हियर यू हैव फ्रीडम, ओके। एग्जामिनर ने आपसे नहीं कहा कि आपने पैराग्राफ लिखना है या आपने ऐसे लिखना है, तो आपके पास फ्रीडम है। आप इसको अगर ऐसे फॉर्म में लिखते हैं यू कैन राइट ऑन 3 और इधर वर्ड लिमिट भी नहीं बताई हुई उन्होंने, ठीक है। आप इसको 150-100 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मोर देन 250-300 वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली आपने अपना इसके अंदर क्या करना है, शेयर करना है, ओके। सो
I request all of the students kindly make sure if you have still any problem or any confusion regarding any of these questions, अगर आपको इन questions के answer चाहिए जो मैंने short list किए हैं, तो I will provide you the answers of these questions as well. और अगर किसी भी question में still you have any problem, still आपको किसी भी question में कोई problem आ रही है, तो you can comment as well, and I will make a video related to this one, or we will discuss the problem in the comment section as well. Students, this exam is very important for all of you because you are in the second semester now and your marks will be very crucial in the next semester. आपको जो इस सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आपके अगले पूरे साल के और अगले पूरी डिग्री के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. So consider this whole expository writing exam very serious, and if you have still any query question, so you can write down in the comment section. I will provide you. And again, if you want any further suggestion or any confusion, mostly students if you have, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर वो अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा. आई विल आंसर यू. सो दीज आर द शॉर्ट टिप्स एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली go through these important questions of chapter number 1. These are the questions which we have shortlisted according to chapter number 2. चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चंस आपने करने हैं. चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपके एसेज आएंगे, लेकिन आपने साथ में MCQs को ज़रूर करना. चैप्टर नंबर 6 वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो एंड दीज आर द expected paragraphs and essays which you can have in your exam. सेम नहीं होंगे, इनकी कोई वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट जो लिखने का स्टाइल होगा वो सेम होगा. सो मेक श्योर यू हैव टू राइट डाउन एंड अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जाम एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चंस अनडन. द रीज़न इज़ दैट देयर इज़न्ट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर करें. सो फ्रॉम माई साइड आई विल विश यू all the good luck for your exam, and thank you for watching this video. Thank you for making this channel successful as well. Thank you.